Based on this formula, we can solve this question. This is the textbook question, 10th. Value of that resistance, number of turns, area of cross section and field are given for two moving coil meters, moving coil galvanometers है ना. तो current sensitivity का ratio in the order M2 by M1 है ना. Second coil, second moving coil galvanometer to the one. तो करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या है? बैंक पहले का ही आएगा, दूसरे का इधर डिवाइड करेंगे. K is given same. After putting the values, all values, solve it. Its ratio is coming 1.5, 1.4. Sorry. Direct question था ये. Only thing you have to remember the formula. Now second part के लिए you don't have to put all the values again. फिर से सारी value put मत करो. Because we know voltage sensitivity is current sensitivity upon resistance, है ना. तो इसका ये आएगा और इसका इधर आ जाएगा. तो करंट सेंसिटिविटी का रेशियो अभी हमने निकाल लिया. दिस वन 1.4 here. Resistance of first coil is 10 and that of second coil is 14. So it is coming 1. All right. So direct formula based question, but you have to remember the formula. Easy to remember the formula है ना. यहाँ पे हमने कैसे बताया था इसको? Current sensitivity is bank and this is banker. R भी लग गया उसमें. BAN न्यूमरेटर में है, K and R डिनोमिनेटर. There are 5 terms. जिसमें A and N I told you and R, they are interrelated. If you increase the number of turns, resistance will go up. So sensitivity is not going to change. Sensitivity you want to increase, you have to increase the magnetic field. You have to use a strong magnetic field, and the K of the spring should be less. For that phosphor bronze battery, all I that it has got least value of K, sensitivity will go up. All right. So this is the only question of this topic. Now, what was the next one? ये हो गया था? बोलो. In which case, force is maximum. Electric field is outward. Dot means outward. Electric field यहाँ से बाहर निकल के आ रही. It is coming out of the plane of the paper. Or magnetic field is towards left. In which case, maximum force will be there on the charged particle. Maximum force किसमें होगा? One in which both the forces are in same direction. Electric force तो outward ही होगा because field is outward. Sorry, dot है field, that is outward. Charged particle is plus. So electric force will be outward, and magnetic force, in which case it will be outward. Both will be added up. Magnetic force के लिए right hand rule. If you keep your fingers along this, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, तो एंगल ही 0 हो गया. फिंगर्स रखने की जरूरत ही नहीं है. F is 0. F magnetic force is 0 in this case 1 में. So only electric force is there which is outward. Are you getting this? 2 में velocity is this side, magnetic field is this side. Keep your fingers this side. Palm should be this side because you have to do the curling also. Thumb is coming which direction? Are you there? तुम लोग हो लाइन पर? Yes sir. हाँ, राइट हैंड रूल से फिंगर्स जब हम इधर रखेंगे, अपनी पाम इस तरफ होगी, तो थंब विल बी कमिंग अप.
तो मैग्नेटिक फोर्स भी अपवर्ड होगा, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड, यहाँ से बाहर की तरफ आएगा। देखो तुम अपने फिंगर्स रखो, कीप योर राइट हैंड की फिंगर्स इस तरफ रखो, palm should be this side because field is this side. सेकंड वेक्टर की तरफ palm आनी चाहिए, thumb is coming towards you. If you keep it on your notebook, thumb is coming towards your face, so both the forces will be added up here. तो सेकंड केस में मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड केस में वेलोसिटी इज दिस साइड, फील्ड इज दिस साइड, तो फिर से एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन 180 कितना होता है, 0। तो ये भी 0 हो गया, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा 1 एंड थर्ड में। व्हाट अबाउट फोर्थ केस में, यू आर प्रोजेक्टिंग द चार्ज पार्टिकल दिस साइड, फील्ड इज दिस साइड। जब तुम फिंगर्स रखोगे अपनी इधर और पाम इस तरफ रखोगे, थंब विल बी गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, थंब अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आउटवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड, दोनों अपोजिट हो गए, तो दैट विल बी लिस्ट, फोर्थ में लिस्ट हो जाएगा। एंड 1 एंड 3 में ओनली मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा विच इज अपवर्ड, उसको अपोज नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स इज 0, इट इज नॉट एबल टू अपोज, नादर इट इज एबल टू सपोर्ट। तो 1 एंड 3 में टाई, सेकंड नंबर पे 1 एंड 3 रहेंगे टाई। फोर्थ में मिनिमम हो जाएगा, वाई बिकॉज one force is upward, other force is downward, cancelling effect will come. If you further project faster, fourth में और फास्ट प्रोजेक्ट करो, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी Sir, you are not audible. Okay, but I will talk to sir. Sir is doing the needful. बेटा अभी किसने इन्फॉर्म किया नॉट ऑडिबल वाला? Saloni. या सलोनी, दैट्स गुड बेटा। जैसे ही आपको लगता है कि सर इज नॉट ऑडिबल, जस्ट आप तुरंत ही बोल दो कि सर ये नॉट ऑडिबल। ओके, Yes, sir. क्या होता है, हम वेट करते हैं, फिर हमको 5-10 5-7 मिनट बाद पता चलता है कि सर इज नॉट ऑडिबल। ओके, Yes, sir. ओके। He is doing the needful.
All right. Okay, let us hope for the best. Now I have changed the network. I'm taking the class from a hotspot from the phone. Let us see. Okay. Are you there? Can you hear me? You are Yes. audible, sir. Okay. You are Yes. audible, sir. देखते But हैं अभी screen gone. स्क्रीन But screen गॉन gone. स्क्रीन तो है ना It Yeah, is I there? can see this thing. Yes, Yeah, I it can is see there. मेरा this प्रॉब्लम thing. होगा. I am not able हाँ to. वो Okay, पहले मेरा वाला प्रॉब्लम it होगा. was I am not पहले able वाला to see. होगा आपका फिर से देखिए रिफ्रेश ओके नाउ this part was done. Shall I explain again this one देखो or this was over. See again. Electric field is outward and charge is positive. तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी अब इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी ओके इलेक्ट्रिक फोर्स का सिंबल एफ ई ले लेते हैं आउटवर्ड मैग्नेटिक फोर्स विल डिपेंड इट डिपेंड्स अपॉन द वी क्रॉस बी है ना तो फर्स्ट केस में वी दिस साइड सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता चुके थे सर हो आप गया था ये बता पूरा चुके थे फोर्थ सर पार्ट तक आप हो वो गया फोर्थ यस ओके सर आप वो फोर्थ सेकंड पार्ट yes, कर रहे थे ठीक है तो फिर ठीक है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ इट इज गिवन बाय वी क्रॉस बी है ना क्यू भी होता है इसमें अगर मैग्नीट्यूड ले लो तो क्यू वी बी साइन थीटा ठीक है तो दिस फोर्थ पार्ट वर्जन है फोर्थ में क्या था कि मैं राइट हैंड रूल से फिंगर्स जब इधर रखेंगे और पाम इस तरफ विजिबल होगी थंब अंदर की तरफ जाएगा you can keep your fingers this side and palm should be this side thumb will be entering inside so magnetic force will be inward और electric force is outward तो उसमें क्या होगा लीस्ट होगा फोर्थ केस में लीस्ट आएगा ऑलराइट नाउ बी पार्ट वी वर डूइंग है ना बी पार्ट में दोनों फोर्सेस अभी फोर्थ केस में दोनों फोर्सेस अपोजिट है वन इज अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड है इनवर्ड है So you change the things such that both forces will become equal and opposite. So net force can be zero in this only. इसमें zero हो सकता है बस इसमें zero नहीं हो पाएगा because both the forces are in same direction. और इसमें एक force का effect zero हो रहा है only one force is remaining तो cancelling effect नहीं आएगा. Fourth case में both the forces are in opposite direction तो you can get the zero force net force zero. जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेट फोर्स कैन बी जीरो फोर्थ केस में जीरो हो सकता है एनी डाउट इन दिस ओनली डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन था तो दिस इज गुड क्वेश्चन यू कैन गेट सच क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड बोर्ड आल्सो बोलिए इसमें एनीथिंग यू वांट टू क्लेरिफाई हियर जल्दी से पूछ लो उसमें कुछ पूछना है तो Yes. Anybody? Rules पता होनी चाहिए मैग्नेटिक फोर्स का जो है इट इज नॉट कांस्टेंट फोर्स है कांस्टेंट नहीं है डायरेक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है यू चेंज द वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी इलेक्ट्रिक में फिक्स है ना इलेक्ट्रिक में क्या फिक्स है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड comes outward from positive charges तो positive charges will repel each other है ना और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाती है यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है इट विल मूव दिस साइड तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज विल मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड दैट इज फिक्स बट मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है क्या बोलो कैन यू टेल मी इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी बोलिए इलेक्ट्रिक फोर्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और तुमने पॉजिटिव चार्ज को इधर प्रोजेक्ट कर दिया
ऑलराइट, तो विल इट डिपेंड, वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा किस तरफ फोर्स होगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर? नो, इट विल नॉट No, डिपेंड, इट विल no, बी, हाँ इट विल बी no, दिस साइड no. ओनली, फोर्स विल बी दिस साइड, तो स्लोली स्लोली टर्न हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, इट विल टर्न in the direction of electric force. So you project in any direction, force will be here in rightward, because इधर से पॉजिटिव सोर्सेस से फील्ड आउटवर्ड आती है, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगी, थोड़ी देर के बाद टर्न हो जाएगा फील्ड की डायरेक्शन। इफ यू लीव इट फ्रॉम द रेस्ट, अगर उसको रेस्ट से छोड़ेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएगा, रेस्ट से छोड़ा तो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव चार्ज, but if you project in any direction, ultimately it will turn in the direction of field, because in that direction force will be what is called, force will be acting. One more question I am asking you, anybody, you can just tell me, if we, okay चलो इसको थोड़ा डायग्राम चेंज कर लेता हूँ। My next question is there, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, then it is the last question. What kind of path पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए, what kind of path charge can have in electric and magnetic field? This is again interesting question. बताइए। बोलिए, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का पाथ कैसा होगा? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, कैन वी हैव सर्कुलर पाथ चार्ज, पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? आंसर इज नो, बिकॉज डायरेक्शन इज फिक्स, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड में हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के पाथ यू रिमेंबर, पहले मैग्नेटिक फील्ड की बताओ। चलो, मैग्नेटिक फील्ड में दैट इज फिक्स, उसके हमने ऑलरेडी वी हैव रिटन इन मैग्नेटिक फील्ड, उसका पहले फाइनल कर लेते हैं। कैसे कैसे पाथ थे? 3 केसेस वी हैव सीन। Yes, sir. तो कौन कौन से? फर्स्ट Yes, केस sir. में कौन सा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है? Straight lines and then straight line and then helical. हाँ, स्ट्रेट लाइन पाथ फर्स्ट केस में था, थीटा जब 0 होता है या 180 होता है। सेकंड केस में 90 डिग्री पे सर्कुलर पाथ था, एंड थर्ड केस इट वाज हेलिक्स, है ना, हेलिकल पाथ। तो ये तो होगा मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में बताइए, इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, स्ट्रेट लाइन और वही और वही है बस, और वही है। सर्कुलर नहीं, सर्कुलर ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी देयर, टर्न नहीं होगा। वो क्या होगा, एक डायरेक्शन में फोर्स है ना, तो इट विल नॉट कम बैक, है ना। तो सर्कुलर के तो चांसेस नहीं है, बट और कोई पाथ हो सकता है, बोलो। अच्छा ये बताओ, चलो सर कर्व पाथ, कर्व पाथ curved का नाम path. है कुछ, कर्व यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म फील्ड, बोथ यूनिफॉर्म, दोनों फील्ड यूनिफॉर्म है। लेट मी राइट हियर, बोथ यूनिफॉर्म। कर्व पाथ का कुछ नाम है? अच्छा ये बताओ, यस, ये बताओ, जब हम किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को एयर में फेंकते हैं एंगल पर, तो कैसा पाथ मिलता है? सपोज हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा हमने 11th में, प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है? Parabola. पैराबोलिक। तो हियर आल्सो सेम सिचुएशन। सपोज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम नीचे की तरफ किसी भी ले लो, डजंट मैटर, पर ग्रेविटी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ ली हमने, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज को ऐसे प्रोजेक्ट कर दो तो वो ऐसे टर्न हो जाता है, पैराबोलिक पाथ बनाएगा। ठीक है,
it will be parabolic path. Second case can be parabolic. अगर तुम इसको just release कर दो तो it will come down like simple ball. हम release करते हैं ऐसे, और अगर हम इसको project करते हैं ऐसे, parabolic यहाँ से project करो ऐसे, तो ऐसा आएगा, parabolic path बनाएगा. तो similar to the gravitational forces, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है ग्रेविटेशनल इफेक्ट जैसा ही. ओनली थिंग एक्सेलेरेशन ड्यू टू, वहां पे ग्रेविटी में एक्सेलेरेशन g होता है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होगा? एक्सेलेरेशन इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? फोर्स अपॉन मास, फोर्स विल बी q इनटू e. एक्सेलेरेशन ये लेंगे, बाकी सब पैराबोलिक जैसे जो रिजल्ट थे वैसे आ सकते हैं. इफ यू आर ट्राइंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस, तो रिमेनिंग पॉइंट्स विल बी, टाइम कितना लगेगा उसको यहाँ तक आने में, एवरीथिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू द पैराबोलिक रिलेशंस जो हमने सीखे. तो सेकंड पाथ इज पैराबोलिक. ठीक है, दिस कैन आल्सो बी यूजफुल क्वेश्चन फॉर यू. बोले कोई डाउट है इसमें? दीज आर द स्मॉल क्वेश्चन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेबल में पूछ सकते हैं आपको, टेबल के फॉर्मेट में. कॉमन क्या आ रहा है इसमें? ये दोनों कॉमन है, अदरवाइज दे आर डिफरेंट, है ना. इसमें हेलिकल पाथ नहीं मिलता है, आई मीन सॉरी, इसमें पैराबोलिक पाथ नहीं मिलता, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड रूल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. And one more point, shall I ask you in this? Can magnetic field change the energy of the charged particle, kinetic energy of the charged particle? बोलो. ये क्वेश्चन ऑलरेडी डन है, किया हुआ हम लोगों ने, पर डन ऑल्सो. दो पार्ट, इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन है. Can magnetic field change, number one kinetic energy, number two momentum, linear momentum. Linear momentum of charged particle, linear momentum और सिंपली वेलोसिटी पूछ लूं. पहले मैं वेलोसिटी का पूछता हूँ, फिर काइनेटिक एनर्जी. कैन मैग्नेटिक फील्ड चेंज, नंबर वन वेलोसिटी, एंड नंबर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल. वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. तो दैट पार्ट बोलिए. दिस इज अगेन गुड क्वेश्चन. बोले वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड वी आर टॉकिंग अबाउट. Yes, sir. कैन इट चेंज द वेलोसिटी? यस. हाउ कैन इट चेंज? इसमें चेंज हो, कैन वो यू, perpendicular रहता है, circular path. हाँ, सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी चेंज होती है ना. Yes, yes. व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? Sir, velocity. It will also change. ओके, एक मिनट, जस्ट वन बाय वन. इट विल आल्सो चेंज, यू टोल्ड. सेकंड आंसर क्या था? Yes, sir. It will also. काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. Yes, sir. ओके, यू, मैंने तुम लोगों को थोड़ा ट्रैप कर लिया यहाँ पे, क्वेश्चन चेंज करके, सीक्वेंस चेंज करके. दैट्स हाउ दे फॉर्म द क्वेश्चन. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह से ही ट्रैप हो जाते हो आप लोग. वेलोसिटी चेंज हो रही है बट स्पीड चेंज हो रही क्या? स्पीड, काइनेटिक एनर्जी डजंट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, डिपेंड अपॉन द स्पीड. दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना. वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रही कि डायरेक्शन चेंज हो रही. क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है? बोलिए. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है? नो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. यहाँ पे शैल आई राइट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूसीएम. इट इज यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स velocity
can change because of direction change, but speed doesn't change. Kinetic energy is half mv square. V is the speed. Kinetic energy is the scalar quantity. Kinetic energy scalar quantity है और उसमें velocity का square नहीं होता है. It is square of speed. तो speed change नहीं होती. तो kinetic energy will not change. Will not change. No. है ना, क्या लिखे? No, it doesn't change. ठीक है. तो why doesn't change? बोलो. अभी follow up question is why it doesn't change? Why speed doesn't change? Velocity change हो रही तो speed change होने में क्या problem है? बोलिए. Because why the speed doesn't change? Why the magnitude of velocity doesn't change? Only direction ही change हो पाती है बस. क्योंकि magnetic force is always, are you there? Yes, sir. Yes, yes, Okay. yes, yes. Okay. So magnetic force is always perpendicular to the velocity. Perpendicular होने से only centripetal acceleration नहीं होता है बस. I mean उसका कोई भी component velocity की direction में नहीं आता है. Acceleration का कोई भी component velocity की direction में नहीं आता. तो suppose यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सी ऐसे है. तो अगर वेलोसिटी इधर है तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इधर होगा, है ना. तो मैग्नेटिक फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होगा. इधर उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा तो वेलोसिटी विल नॉट चेंज. ऑलवेज 90 डिग्री पे. जब चार्ज पार्टिकल इधर आ गया तो फोर्स नीचे की तरफ होगा, है ना. तो 90 डिग्री पर जब फोर्स है ऑलवेज, तो none of the component of force will be along the velocity. तो velocity will remain unchanged. फोर्स से कुछ ना कुछ कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ आएगा तभी तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो पाएगा. तो विच इज नॉट हैपनिंग, है ना. फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है. इसमें क्या होता है? F इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है. ऑलवेज परपेंडिकुलर होने से कोई भी कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज नॉट कमिंग अलोंग द वेलोसिटी और अपोजिट टू वेलोसिटी. इट रिमेन्स अनचेंज. वेलोसिटी मतलब स्पीड रिमेन्स अनचेंज, उसका मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनचेंज, बट डायरेक्शन चेंज हो सकती है. फोर्स इधर लग रहा है तो इसको इधर पुल करने की कोशिश करें, इसलिए डायरेक्शन चेंज होती जाती है. 90 डिग्री का जो फोर्स है इट कैन ऑलवेज चेंज द डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता. ठीक है. तो दीज आर द रिलेटेड क्वेश्चंस. और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. लीनियर मोमेंटम विल आल्सो चेंज बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज m into v. आ रहा समझ में? So these are the very important points. You have to know all of them. कोई भी क्वेश्चन इससे आता है तो करना चाहिए आपको. All right. बोलिए, anything you want to add here or you want to ask anything? Just I am concluding this one. और कुछ है आगे नहीं है, बस that's all. कुछ और पेंडिंग है पीछे का? I think done. So moving on to the next chapter now. Let's see what is that.